السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری وقال تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال تعالی فی مقام آخر وفی انفسکم افلا تبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا ڈر ہو قاسم تجھے کس لیے، تیرا آقا ہے وہ تیرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ سارے احباب درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، معززین مجلس، طلباء اعظام، اساتذہ کرام، جمعیت علماء اسلام کی ضلعی قیادت، تحصیل کی قیادت، یوتھ کی قیادت، جمعیت طلبہ اسلام کی قیادت، بزنس فورم کی قیادت، آج میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے تمام احباب کی طرف سے اپنے بھائی مولانا اسامہ شاکر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن بچوں کا قرآن مکمل ہوا ان کو، ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وقت بہت نازک اور تھوڑا ہے، میں نے 3 چھوٹی چھوٹی آیات بلکہ ایک کا آدھا ٹکڑا پڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں 5-6 منٹ میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو آسمانوں پر لے گئی۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، آسمانوں پر جانے والے آدم علیہ السلام نہیں ہیں، آسمانوں پر جانے والے سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے دوش پر تخت کو اڑاتا ہوا معجزہ تو عطا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ آسمانوں کی سیر کر کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک تو گئے لیکن عرشوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ طور تک تو گئے لیکن آسمانوں تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نغمہ خوانی اتنی مقبول ہوئی، جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے۔ حضرت دانیال نے دعوت دی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نے دعوت دی، حضرت یوسف کو خوبصورتی عطا فرمائی، لیکن یاد رکھیے جس کو تورات ملی اس کو عرش نہ ملا، جس کو انجیل ملی اس کو معراج نہ ملی، جس کو زبور ملی اس کو معراج نہ ملی۔ معراج اس کو ملی ہے جس کو اللہ نے اپنا قرآن عطا کیا۔ یاد رکھو، پتہ یہ چلتا ہے تورات اپنی جگہ اچھی، انجیل اپنی جگہ مقبول،
ज़बूर अपनी जगह मकबूल, आसमानी सहीफ़े अपनी जगह मकबूल, लेकिन इन सब की कबूलियत इतनी नहीं जितनी कबूलियत अल्लाह ने कुरान को अता की है। उन पैगंबरों पर ईमान लाने के साथ, उनकी किताबों पर भी ईमान लाने के साथ साथ हमारा ईमान और अकीदा यह है कि खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सारे कायनात के अंबिया के इमाम और हम सब के दिलों की धड़कन, और जिस पर अल्लाह ने नबुव्वत की मोहर लगा दी, ख़त्म नबुव्वत की मोहर लगा दी, जिस पर अल्लाह ने आसमानी किताबों में आखिरी किताब उतारी, वो है कुरान करीम। और उस कुरान करीम को जिस नबी पर उतारा वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा साकी कौसर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान देने के बाद फिर एक ही रात में आसमानों पर उठा करके अर्शों की सैर करा के पूरी दुनिया को बताया। रात के एक टुकड़े में मैंने अपने कुरान वाले को मक्का से उठाकर मदीना पहुंचाया, कोहतूर पर पहुंचाया, मस्जिद अक्सा पहुंचाया, फिर आसमानों पर पहुंचाया, फिर अर्श महल्ला पे पहुंचाया। अल्लाह से मुलाकात होने के बाद रातों रात वापस मक्का मुकरमा में पहुंचा करके पूरी दुनिया के कफर को, पूरी दुनिया के मज़ाहिब को यह चैलेंज दे दिया कि जहां कुरान होगा वहां सबसे मुकद्दस किताब कुरान होगी, और जहां मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा उससे बढ़कर कोई और नबी नहीं होगा। और जिस धरती पर, जिस मकाम पर, जिस मरकज में मेरे नबी का नाम लिया जाएगा और मेरे नबी पर उतरने वाली किताब पढ़ी जाएगी, वो धरती भी सारी कायनात की धरतियों से अफजल आला नजर आएगी। फिर मुझे कहने दो, वक्त थोड़ा है, इसके पढ़ाने वाले भी आला, इसके पढ़ने वाले भी आला। अरे इसको अगर अबू बकर ने उठाया तो सिद्दीक बन जाता है, अगर उमर उठाता है फारूक आजम बन जाता है, उस्मान उठाता है जुल्नुरैन बन जाता है, शेर खुदा उठाता है हैदर कर्रार बनता है, खालिद बिन वलीद उठाता है सैफुल्लाह बनता है, अबू हुरैरा उठाता है हाफिजुल हदीस बनता है, अब्दुल्लाह बिन मसूद उठाता है वो मुअल्लिम कुरान बनता है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास उठाता है मुफस्सिर कुरान बनता है, अबू हनीफा उठाता है इमाम आजम बनता है, कोई इमाम मालिक बनता है, कोई इमाम शाफी बनता है, कोई अहमद बिन हंबल बनता है। अरे 14 सदियां गुजरने के बाद जब इसी कुरान करीम को शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने सीने में उठाकर चलता है, पीराने पीर नजर आता है, कभी जुनैद बगदादी नजर आता है, कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस कुरान करीम को उठाने वाला हजरत मौलाना कासिम ननौतवी वो नजर आता है, कभी शेख हिंद माल्टा की जेल में इस कुरान करीम को बयान करते हुए नजर आता है, कभी हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल में इस कुरान करीम को पढ़कर हिफज करके अपने उस्ताद को सुनाता हुआ नजर आता है, और कभी पाकिस्तान की सरजमीन पर मौलाना अब्दुल्लाह शाह बुखारी जेल की सलाखों के पीछे कुरान करीम को पढ़ता हुआ नजर आता है, और कभी इमामुल औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी वो जेल की सलाखों के पीछे पेड़ के ऊपर सख्त बर्फ के पहाड़ रखे हुए, नीचे भी बर्फ की सीला रखी हुई, दाएं भी बर्फ की सीला रखी हुई, बाएं भी बर्फ की सीला रखी हुई, उस मौके पर अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है और अंग्रेज कहता है ओ लाहौरी बता तो सही, तेरा जिस्म तो ठंडा नहीं हुआ, अब तो दस्तखत कर दे कि तू अंग्रेज का बागी नहीं है, अंग्रेज का वफादार बन जा, तो छोड़ दिया जाएगा, तेरे ऊपर से बर्फ की सीलें हटा दी जाएंगी, तेरा जिस्म ठंडा हो चुका है। अरे कुर्बान जाओ इन अकाबिर पर जिन्होंने कुरान को सीने के साथ लगाया। फिर अहमद अली लाहौरी ने एक जुमला कहा था इन मदारिस की तरबियत को सामने रखते हुए, आपके जमीनों को झोल जानना चाहता हूं, क्या कहा था ओ अंग्रेज, तू मुझे कहता है कि कुरान सुनाते हुए तेरे सीने पर हमने बर्फ की सीलें रखी हैं, तेरे बदन के नीचे बर्फ की सीलें रखी हैं, तेरा बदन ठंडा हो गया, अंग्रेज की वफादारी का हल्फ ले ले, दस्तखत कर दे। ओ अंग्रेज, रब्बे काबा की कसम, तूने मेरे जिस्म को तो ठंडा कर दिया है, लेकिन जो कुरान मेरे सीने पे है उसको पढ़ते हुए मेरा ईमान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। मुझे कहने दो, वक्त की तंगी है, यह कुरान जहां पढ़ा जाएगा कुरान वाले भी अजमत वाले, वो जगह भी अजमत वाली। इमामुल अंबिया ने हजरत अली को फरमाया था, अली याद रख, कुरान पढ़ता रहे, कुरान पढ़ाता रहे, कुरान पढ़ता रहे, कुरान पढ़ाता रहे, कुरान पढ़ता रहे, कुरान पढ़ाता रहे। या रसूलुल्लाह, अमल तो करूंगा, मिलेगी क्या? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली जब तू कुरान पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, आसमान के फरिश्ते तेरे ऊपर रहमत लेकर उतरते रहेंगे, यहां तक कि अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते में तेरा इंतकाल हो जाता है, अली याद रख, तू कब्र में चला जाएगा,
कब्र में तू सो जाएगा, आसमान के फरिश्ते आएंगे, क़यामत तक इस कुरान की बरकत से तेरी कब्र का तवाफ करते हुए नजर आएंगे। अब बताओ दुनिया में कौन सा ऐसी तालीम है जिसके पढ़ने के साथ कब्र में फरिश्ते आते हो, कब्र का तवाफ फरिश्ते करते हो? ये वही कुरान है। आइए आज हम याद करते हैं, इस मुल्क पाकिस्तान में मदारिस को बड़ी परेशानी है, मदारिस के ऊपर बड़ा दबाव है, लेकिन हमने याद किया है इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में खून का कतरा भी बाकी है, इंशाअल्लाह मदारिस का दफा करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही, करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े अजीब अजीब अंदाज से कहा जा रहा है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहा जाता है इनकी नर्सरियां तो ये मदरसे हैं, ये मजाहिद पैदा करते हैं, ये तालिब इल्म पैदा करते हैं, मासूम बच्चों को बात समझाते हैं, ये खड़ा होकर कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, कंप्रोमाइज नहीं करता। यहां तक कि फलस्तीन के ऊपर कितनी बमबारी हुई, फलस्तीन में 1 लाख के करीब मुसलमानों को तहते कर दिया गया, जमीन के अंदर दफन है, अभी तक लाशें नहीं निकली। लेकिन हालिया दिनों में, चंद दिन पहले की बात है, इस माहौल में भी वहां 500 बच्चों की दस्तारबंदी होती है, जो इस माहौल में अल्लाह के कुरान को सीने में डाल रहे हैं। बताओ दुनिया से कुरान को मिटा सकेगा? बोलो आप लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह मदरसे का दफा करना है, लेकिन याद रखना मदरसे मस्जिद का दफा करना आसान काम नहीं। आप चूंकि यहां बैठे हो, जब हमारा फौजी वो पहरा देता है सरहद पर, तो हम आराम सुकून से बैठे होते हैं, लेकिन उसको यकीन होता है कि मेरे पीछे मेरी कौम खड़ी है, पैसा लग रहा है, टेक्नोलॉजी है, मेरा टैंक तैयार हो रहा है, मेरा जहाज तैयार हो रहा है, इसलिए वो बड़े दर्दमंदी के साथ, जुर्रत के साथ खड़ा होता है। आज इस महाज पर, इस्लाम को बचाने के महाज पर, ये उलमा देवबंद, ये उलमा कराम, ये जमीयत उलमा इस्लाम इन महाजों पर खड़ी होकर आपका दफा कर रही है। उसके लिए जरूरत इस समर की है कि आप आज हम हाथ खड़े करके बताओ कि आप इन उलमा के साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो? इंशाअल्लाह आप मदरसे के साथ खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे? इंशाअल्लाह आप खत्म नबुव्वत के साथ खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे? इंशाअल्लाह डाका डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक ये नौजवान हैं, जब तक ये नौजवान हैं, जब तक ये मदरसे की चिटाई पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाला एक भी नौजवान बाकी है, इंशाअल्लाह किसी मां ने वो बच्चा जना नहीं जो पाकिस्तान से मदरसे को खत्म करेगा। कहा जाता है तुम मदारिस्तान बनाना चाहते हो? हाँ हम मदारिस्तान बनाना चाहते हैं, हमको सिनेमा घर नहीं खोलना चाहते, हमको यहाँ पर कोई फहाशी के अड्डे नहीं खोलना चाहते। हमारे बस में हो हर घर के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर कलिये के अंदर, हर रेड़ी वाले के पास, हर छाबड़ी वाले के पास, हर दुकान के अंदर, हर जगह से कुरान की आवाज आएगी, और इसके लिए हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। नेतन्याहू हो, अमेरिका का ट्रंप हो, या कोई और हो उसका एजेंट हो, इंशाअल्लाह मदरसा खत्म नहीं कर सका, मदरसा खत्म नहीं कर सकेगा जब तक दुनिया बाकी है, ये इस्लाम बाकी है, और इस दुनिया के बाकी रहना इन मासूम बच्चों के बाकी रहने पर है, इनकी अल्लाह अल्लाह करने पर बाकी है। कुरान कहता है ला तक़ूम, हदीस कहती है ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़, अल्लाह अल्लाह उस वक्त तक दुनिया में क़यामत पर पानी हो सकती जब तक दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, और ये अल्लाह अल्लाह कहने वाले हैं। इसलिए याद रखो हम आलम कुफ्र को भी पैगाम देते हैं, तुम्हारी बका भी इस पर है कि जब तक ये बच्चे जिंदा हैं, कुरान जिंदा है, ये अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, क़यामत कायम नहीं होगी। जिस दिन ये मिट गए, जिस दिन मदरसा मिट गया, तबलीगी जमात मिट गई, खानकाहों का निजाम मिट गया, तबलीगी जमात के साथ साथ ये मदारिस मिट गए और ये सारा सिस्टम खत्म हुआ, उस दिन दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं होगा। जब अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई ना हुआ तो फिर क़यामत कायम होगी। इसलिए दुनिया को बाकी रखने के लिए अल्लाह अल्लाह कहना जरूरी। आप ही कह दो अल्लाह अकबर, आप ही कह दो। इस मदरसे को कौन बाकी रखेगा? बड़े डरे डरे बोल रहे, बताओ कौन बाकी रखेगा? मदरसा किसके लिए बना है और कौन इस मदरसे को बाकी रखेगा? इंशाअल्लाह ये कुरान किसकी किताब है? बोलो किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है, और ये उलमाए कराम अल्लाह की किताब को पढ़ा रहे हैं। आज कहा जाता है मौलवी कह रहे हैं कि जी ये सियासत के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, एक करंट इश्यू चल रहा है,
جی آپ کہتے ہیں 15 سال کی بچی کا نکاح، 16 سال کی بچی کا نکاح، 17 سال کی بچی کا نکاح. ارے یاد رکھو بچی بالغ ہو جائے تو والد کا اختیار ہے کہ وہ جا کے نکاح پڑھا سکتا ہے، بچی کو نکاح میں دے سکتا ہے، اس کی عزت اور حرمت ہے. یہ تم نے کہاں سے نکال لیا کہ بچی کا والد تو میں ہوں، بچی کے والد تو یہ بزرگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں میری بچی 16 سال کی ہو گئی، میری بچی 17 سال کی ہو گئی، میری بچی جوان ہو گئی، میں اس کا رشتہ دینا چاہتا ہوں. اور آپ کا قانون کہتا ہے نہیں جی جہاں آپ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ اگر آپ دیں گے آپ پر پرچہ ہوگا، آپ کی بچی کا نکاح پڑھانے والا مولوی اس پر پرچہ ہوگا، گواہ بننے والے گواہ اس پر پرچہ ہوگا. ارے بتاؤ تو صحیح، اگر یہی بچی خدا نہ کرے کسی آشنا کے ساتھ چلی جائے پھر تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ میری بات سمجھ آئی؟ پھر تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ عزت کا دفاع کرنے والے علماء ہیں. اور یاد رکھو تمہارا وہ قانون جو شریعت سے متصادم ہوگا جوتی کی نوک پر رکھ کر پھینکیں گے، اور انشاءاللہ ہم شریعت کا دفاع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.